कर लिया assignment complete? Yes, ma'am. Okay, very good. Yes. Who else has completed the assignment? No one? Nandini? Start with this question. Question number 59. Read it, please. I thought we have done till 60. Now in this question, Pink and Blue were partners sharing profit ratio is 3:2 after closing the accounts on 31st March. Their fixed capital were 2 lakh and 1 lakh. Their drawings during the year were 20,000 and 10,000. Profit for the year was 50,000. It was found that profit was distributed directly by the partners without providing IOC per annum. Give the adjusting entry. हाँ बच्चों कर लोगे अगला क्वेश्चन. सॉरी बोलो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अगला. Yes, ma'am. Persh, 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 am I audible to you? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. सांची Yes, ma'am. लेट ज्वाइन की ना क्लास. मैम ट्यूशन थी दूसरी. ओके और सांची असाइनमेंट कंप्लीट हो गया बच्चे. मैम हो गया, डाउट्स है लेकिन उसमें. कोई बात नहीं, डाउट्स के लिए विल हैव एक्स्ट्रा क्लास, तो उसमें अपने सारे डाउट्स ले लेना. टिल देन बच्चे ये वाला असाइनमेंट प्लीज कंप्लीट करना है. हरी अप डू इट. क्वेश्चन नंबर 59 रीड इट. बच्चों इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल क्या होगी? हु इज गोइंग टू टेल मी हियर what will be the opening capital in the question? IOC is always calculated on opening capital. Now what will be the opening capital here? मैम 2 lakh and Ma'am, 1 2 lakh lakh only. and 1 lakh. 2 lakh and 1 lakh, because here in the question fixed word is given, so we assume. अच्छा अब यहाँ पे कोई changes नहीं है ना, there is no addition, no withdrawal, so we assume that fixed capital whatever is given it is our opening capital. तो अब इसमें ये मत करने लग जाना कि आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो ड्रॉइंग माइनस करके प्रॉफिट फिर से डिवाइड करके, वो मत करना प्लीज. फिक्स कैपिटल है, फिक्स वर्ड गिवन है, तो ये ही ओपनिंग कैपिटल होंगी. आईओसी कैलकुलेट करो, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करो और जल्दी से अपनी एडजस्टिंग एंट्री पास करो. ओके चल देन ये वाला क्वेश्चन जब हो जाए मुझे बता देना, अगर नहीं होगा तब भी बता देना प्लीज. यति. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा. यति हैव यू डन सेकंड चैप्टर? दिस इज ऑफ पार्टनरशिप. No, ma'am, I haven't done the second chapter. So nothing is done in accounts, okay? Ma'am, chapter 1 is done, not chapter 2. Okay, non-profit organization that is done already in the school, right? Yes, ma'am. Okay, बच्चे we are doing basic of partnership, ठीक है? I'm just giving you the introduction of the topic because अभी भी हम topic के बहुत in between है, तो this is the second last topic of the chapter what we are doing in the class. So I told Pooja ma'am that I'll provide you extra class for this chapter, maybe on Sunday, right बेटा? Yes, ma'am. But अभी मैं थोड़ी सी introduction दे रही हूँ so that you must be familiar with the chapter here. Board is visible, Yati? Yes, ma'am. Okay. So our second chapter is basic of partnership. Till then, everyone is going to do the first question of the page. If there is any doubt, do ask. In this question, fixed capital is given in the question. So you will calculate IOC on that fixed capital. Okay, do not find capital is given, so that will be the opening capital here only. Okay, Ati. Basic of partnership. What do you mean by partnership, dear?
Ma'am, partnership is when two or more persons they have agreed to share the profits of a business which is operated by one or by all of them. Yes, very good. So what is partnership? Basically, partnership is a written, it's a kind of sharing between two or more persons, and they have agreed that they will share future profit and losses in the ratio whatever they have decided. And any partner, if any partner is performing any activity in the business, all the partners will be liable for that activity, right? तो सारे के सारे पार्टनर्स भी क्या होंगे, उसी एक्टिविटी के लिए लाइबल होंगे, वट एवर इज डन बाय, लाइक वी हैव थ्री पार्टनर्स A, B, C. If C is doing any activity for the business, A and B, they both will be equally liable for this, the activity done by the C, right? Now in this case, partnership, what is partnership deed? We have done it in business studies. So partnership is what? You know the meaning of the partnership very well. What is partnership deed, which is when it is partnership deed? Ma'am, partnership deed is the written form of document on which the rules and regulations Very good. It is a kind of written partnership are document. stated. Very good. So it is a kind of written document in which all the terms and conditions related to the partnership is mentioned, right? Now, according to our Indian Partnership Act, 1932, बच्चे इस एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी. किसी भी पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन इट इज नॉट कंपल्सरी. If partners registered their firm, then it will be easier for them to file a suit against anyone or outsider. But if they do not get their firm registered, then according to Indian Partnership Act 1932, there are some provisions they have to follow in the absence of partnership deed. राइट बेटा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. देखो इसी से हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होता है. पार्टनरशिप डीड अगर अवेलेबल नहीं है, मींस अगर पार्टनरशिप में आप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, इन दैट केस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं इन केस ऑफ साइलेंस और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट प्रोविजन, पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. मतलब if nothing is mentioned, if deed is not present, all the partners will share profit and losses equally. This is the first point. No interest on capital will be allowed. किसी को कोई भी IOC नहीं दिया जाएगा. IOC means interest on capital will not be given to any partner. No salary is allowed. No commission is allowed. No bonus is allowed in case of absence of partnership deed. Right? Am I clear till here? Yes, ma'am. ठीक है. Now next is बच्चे, if any partner advances loan to the partnership firm, he will get interest at 6% per annum only. और कोई रेट चार्ज नहीं किया जाएगा, सिर्फ 6% पर एनम के अकॉर्डिंग उसे इंटरेस्ट मिलेगा. बाकी और कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा पार्टनर्स को. लेट अस सपोज A, B and C, they are partners. There is an absence of partnership deed among them, and B is saying that I am working more than both of you and I should get a salary of 3,000 per month. So if there is no partnership deed, then B's point is correct here or not? No, ma'am, it is incorrect. They should get equally. No, they will not get salary at all. No partner will get salary at all because it is not present in partnership deed. Partnership deed is absent here. See, Yati, अगर मैं और आप हम दोनों क्या है पार्टनरशिप में है, राइट?
आई एम वर्किंग मोर देन यू एंड आई एम सेइंग यति आई एम वर्किंग मोर देन यू, बट हमारी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं थी. इन दैट केस आई एम सेइंग गिव मी सैलरी 3,000 per month. Now you will say there is absence of partnership deed. So according to this Indian Partnership Act 1932, we have some provisions. You will not get any salary if there is absence of partnership deed, right? Yes, बच्चे ma'am. ठीक है. So note down these provisions, right? Some provisions according to Indian Partnership Act 1932, some provisions according to Indian Partnership Act 1932, in case of silence or absence of partnership deed, in case of silence or absence of partnership deed, right? First point बच्चे, partners will share profit and losses equally. Second is no IOC. Salary, IOC means interest on capital. IOD means interest on drawings. No IOC, salary, bonus and commission allowed to any partner. Allowed to any partner. Second is no IOD will be charged. No IOD. IOD is what? Interest on drawings. No IOD will be charged from any partner. Have you written it, Vita? Yes, ma'am. Okay, the last point is if any partner advances loan to the firm, he will get interest at 6% per annum. He will get interest at 6% per annum. Right, बच्चे? Yes, family. Okay. Wait for a second, please. हाँ जी बच्चों, हो गया क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, मैम एक क्वेश्चन है. हाँ बोलो बेटा. मैम ये ड्राइंग्स का क्या करना है? साची, इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स का क्या करेंगे? यस साची, क्वेश्चन में फिक्स वर्ड गिवन है. यस मैम. तो अब मुझे ये बता, अगर फिक्स वर्ड गिवन होता है तो जो कैपिटल्स गिवन है वो ओपनिंग कैपिटल्स को हम एज्यूम करते हैं या क्लोजिंग कैपिटल्स? ओपनिंग. मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग विल रिमेन द सेम इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड ना. यस मैम. सो हियर देयर विल बी नो यूज ऑफ ड्राइंग. ड्राइंग्स का कोई यूज नहीं होगा, सिर्फ अपना ओपनिंग कैपिटल, मतलब इसे ही कंसिडर करो एज ओपनिंग कैपिटल और डायरेक्ट आईयूसी कैलकुलेट करो. ठीक ओके. है शांति? यस मैम. बच्चे ये ना हमेशा याद रखना, these are the minor points only, but please remember them. If fixed word is given, then the capital will be considered as your opening capital. हाँ बोलो रिया, अमाउंट क्या आ रहा है? मतलब what is your adjusting entry here? Ma'am, blue's current account debit 1,000 to pink's current account debit account 1,000. To pink's current account debit? Or to pink's current No, account? ma'am, blue's current account debit to pink's current Right. account 1,000. Very good. तो रिया याद रहा ये पॉइंट की अगर फिक्स वर्ड गिवन है तो जर्नल एंट्री में भी करंट वर्ड यूज करना है. वेरी गुड. और किसका हो गया? नंदिनी हो गया? Yes, ma'am. Anyone facing problem doing this question? बोलो बच्चों, क्वेश्चन नहीं समझ आया? I'll do it on the board, but please reply. Ma'am, please explain. श्योर बेटा. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर पिंक एंड ब्लू दो पार्टनर्स है, 3:2 की रेशियो है. वीडियो इज समथिंग. The board is visible. Pink and blue,
दे बोथ आर पार्टनर्स, रेशियो है 3:2, कैपिटल है 2 लाख and 1 lakh. Here it is fixed word given, so it means we'll assume it as opening capital because here no addition and withdrawal of capital is given. ठीक है, इसे ही हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल कंसिडर करेंगे. अब हमने क्या करना है, आईओसी कैलकुलेट करना है. आईओसी प्रोवाइड करना भूल गए थे, देयर वाज ओमिशन ऑफ प्रोवाइडिंग आईओसी. कितना परसेंटेज है प्लीज आईओसी? मैम 5%. बस अब डायरेक्टली चाहो तो यहाँ पे अपना एनालिटिकल टेबल बना लो या स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना लो बच्चे. पिंक, क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाना. फर्स्ट ए में क्या आता है, अमाउंट दे शुड गेट. क्या क्या मिल रहा है उसको, आईओसी और प्रॉफिट भी गिवन है. आई थिंक प्रॉफिट भी है ना, कितना है Yes, ma'am. प्रॉफिट? प्रॉफिट 50,000. कितना है बच्चे? 50,000. देखो बच्चे प्लीज आईओसी कैलकुलेट करो. 5% कितना आ जाएगा, 10,000. एक का आ गया. yes मैम 10,000 and 5,000. हाँ 10,000 and 5,000. अब यहाँ पे प्लीज हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट. अमाउंट दे शुड गेट, प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, 50,000. लुक हियर बच्चे, प्रॉफिट कितना है, 50,000. ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी. ठीक है, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी. लेकिन हमें क्या करना होता है, अमाउंट दे शुड गेट. एक्चुअल उन्हें मिलना कितना था, आईओसी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो उनकी रेशियो में डिवाइड करता था. अब यहाँ पे इसका आईओसी का टोटल निकालो, 15,000, 35,000, 35,000. ये डिविजिबल प्रॉफिट है. यहाँ तक क्लियर है ब्रीफ? सारे क्वेश्चन हमने ऐसे ही किए हैं बेटा. हाँ बच्चे बोलो, क्लियर है यहाँ तक? yes मैम. अब हमने क्या करना है, रेशियो कितनी है, 3:2. तो ये आ गया 5. एक को मिल गया 21,000 प्रॉफिट, एक को मिल गया 14,000. राइट. बी पार्ट में क्या लिखते हैं बच्चे, अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड. हमने क्या किया था, जो 50,000 था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इन रेशियो ऑफ 3:2. So one is getting 30,000 and other is getting 20,000. Now find the net effect. Net effect will be A minus B. इसका आ गया 1,000, इसका भी 1,000. Please can you tell me who will be debited and who will be credited here? हाँ प्लीज, मैंने 3 स्टेप्स में क्वेश्चन करवाए थे. फर्स्ट स्टेप था आपका स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाना, देन फाइंड द नेट इफेक्ट. आफ्टर फाइंडिंग योर नेट इफेक्ट, देन फाइंड योर एडजस्टिंग एंट्री, मींस हु विल बी डेबिटेड, हु विल बी क्रेडिटेड हियर. बताओ प्लीज, बता सकते हैं यहाँ पे, एक का 31,000 था, उसे मिला 30,000. कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा प्लीज? Ma'am, blue will be debited and pink will be credited. Very good. Because here the gainer will be debited and the partner who is getting less amount, that is credited. So now our adjusting entry will be blue's current account debit. Why I am writing current account here? Because in question capitals are fixed. To Pink's current account, 1,000 and 1,000. ये एडजस्टिंग एंट्री का जर्नल वाला प्रोफॉर्मा बना के आना, नरेशन भी लिखना है. बीइंग आईओसी रेक्टिफाइड. क्लियर है प्लीज? Yes, ma'am.
ओके बेटा 68 क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया बच्चों आप लोगों ने? Yes. हाँ साथी हो गया क्वेश्चन 59? Yes, ma'am. तुष्टि क्लियर है बेटा क्वेश्चन? Yes, ma'am. 68 क्वेश्चन क्या है बच्चों? PQR are partners in a firm, their capitals are this on 1st January. It means opening capitals given है तुम्हें क्वेश्चन में. As per the provision of the deed, R was to be allowed a remuneration of 3,000 per annum. Interest at 5% per annum was to be provided on capital. Profits were to be distributed in the ratio of 2:1. Ignoring the above terms, net profit of 18,000 for the year was divided among the partners equally. Pass and adjusting entry. It's very simple question. सबसे पहले जो पार्टनर्स को मिलना है वो लिख देना. देन अगर तुमने यहाँ पे बच्चों देखो मैंने आप लोगों को ना यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाया है, लेकिन वो वर्किंग नोट्स में ही है. एज अ मेन स्टेप मत शो करना उसे. सो इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेंटेन योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. उससे क्या होता है सारी जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इजीली क्लियर हो जाता है. इफ यू कैन डू इट डायरेक्टली so do it. There is no mandatory terms that you have to maintain profit and loss appropriation here, right? कर लोगे इस क्वेश्चन को? Yes. ट्राई करो. जिसको भी क्लियर नहीं होगा डू लेट मी नो, आई विल डू इट ऑन द बोर्ड. ठीक है. प्रीति हो जाएगा क्वेश्चन, सॉरी प्रीत हो जाएगा क्वेश्चन. दिव्या मैम क्वेश्चन शो नहीं हो रहा. क्वेश्चन शो नहीं हो रहा. देखो अभी हो रहा है. नो मैम. दिव्या अभी भी नहीं हो रहा. इज स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? No, Yes, ma'am. नो मैम. मैम अब होगी. अब होगी. ओके दिव्या प्लीज चेक. दिव्या नाउ इट इज विजिबल. नो मैम. दिव्या अपना वीडियो ऑन ऑफ करो बच्चे. नहीं हुआ मैम. नहीं हुआ अभी भी? मैम नो. दिव्या नाउ इट इज विजिबल. यस मैम हो गया. Okay. बच्चों प्लीज it's my humble request to everyone. See, these are your online classes. I can't see your notebook. I can't see your faces. So please tell me if you have any doubt doing questions. Please do let me know. ऐसा नहीं कि बाकी का हो गया और जिनका नहीं हुआ वो बैठे हुए हैं करते ही नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए. बिकॉज हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पॉइंट है. तो प्लीज नहीं समझ आता ना, मुझे चाहे क्लास में एक्स्ट्रा टाइम लेके या इन बिटवीन द क्लास मुझे बता दिया जरूर. बाकियों का हो गया इसलिए तुम्हारा भी हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ ओनली, नॉट फॉर एनीवन. क्योंकि अगर सामने होते तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि कोई भी एक बच्चा बिना क्वेश्चन किए चला जाए यहाँ से. चलो जल्दी से 68 क्वेश्चन करो. मैं बता देती हूँ 68 क्वेश्चन में करना क्या है. ओपनिंग कैपिटल गिवन है आप लोगों को, डायरेक्ट इसके आईओसी कैलकुलेट करना. उसके बाद जो प्रॉफिट गिवन है ना वो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड था इक्वली. मतलब इसको जो हम लास्ट में बी पार्ट लिखते हैं ना, अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड 18,000 को इक्वली डिवाइड कर देना. उसके बाद तुमने क्या करना है, अमाउंट दे शुड गेट, क्या क्या मिल रहा है जिसको जो मिल रहा है दे दो. आर को रेम्यूनरेशन मिल रहा है 3,000 को डाल दो. आईओसी तीनों को मिल रहा है, तीनों को डाल दो. फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे बच्चों? हमेशा डिविजिबल प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट होता है. मीन्स उसमें से रेम्यूनरेशन माइनस करोगे, आईओसी माइनस करोगे, उसके बाद आईओसी को सॉरी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे. बस उसके बाद अपना डेबिट क्रेडिट जो नेट इफेक्ट है उसे कैलकुलेट कर लेना. ठीक है. ट्राई करो, जैसे हो जाएगा मुझे बता देना, और अगर नहीं होगा तब भी बता देना. Okay, Yati, let's continue now. Sorry for the interruption, beta.
So we have written provisions, Bache, in the absence of partnership deed. Yes, ma'am. Okay. Now there is next step. Bache, in plus one, we have maintained profit and loss account. Last chapter में किया ना फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. In this account, you get net profit. This account was prepared only in case of sole proprietorship. You know what is sole proprietorship? Single ownership? Yes, ma'am. Okay. Now, in case of partnership, dear, we are going to prepare profit and loss appropriation account. What is profit and loss appropriation account? This account is extension of profit and loss account. So profit and loss appropriation account is extension form of profit and loss account. ठीक है बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो एक्सटेंडेड फॉर्म है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग नेट प्रॉफिट लिखते थे, मींस सिंगल ओनरशिप थी तो सारा का सारा प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटर के पास जाता था. बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं इन केस ऑफ पार्टनरशिप. सो हियर वी विल डिवाइड द प्रॉफिट अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप. ठीक है, इसके अंदर जितना भी हमारा प्रॉफिट है बेटा, प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में. तो बेसिकली दिस अकाउंट इज मेंटेन इन केस ऑफ पार्टनरशिप. क्लियर है बच्चे? व्हाई वी नीड टू Yes, ma'am. मेंटेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? ठीक है, दिस इज द एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस अकाउंट इज मेंटेन इन केस ऑफ पार्टनरशिप. अब बच्चे इसके अंदर हम लोग जब ये मेंटेन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, you need to understand the concept of charge and appropriation. So first we have done some provisions in case of absence of partnership deed. They are very important. They will be helpful while solving your numericals. Second we have done is profit and loss appropriation account, because अगर आपको provisions की knowledge है, only then you can make your profit and loss appropriation account. But one is charge, other is appropriation. What is charge and appropriation? Charge is compulsory in nature. Appropriation is not compulsory in nature. बच्चे मैंने अभी डिटेल थ्योरी डिस्कस नहीं की इस चैप्टर की. only the terms which are related to your practical problems that I am discussing here, right? So that you can also be parallel in the class. Charge एक compulsory nature की item है, right? और appropriation compulsory नहीं है. मतलब charge फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही पड़ेगा. लेकिन appropriation कब देंगे? जब सिर्फ प्रॉफिट होगा, लॉस के केस में appropriation नहीं दिया जाएगा. It is provided whether the firm is making profit or suffering losses. But appropriations only when there is profit. Is it clear, beta? 2 points clear है related to charge and appropriation. Yes, ma'am. Charge compulsory है, appropriation compulsory नहीं है. Charge अगर profit है फर्म को, लॉस है तब भी देना पड़ेगा. देखो, let's take an example. अगर हम लोग एक बिल्डिंग में हैं, पार्टनरशिप एक बिल्डिंग में है, इस बिल्डिंग का रेंट we have to pay. Why? Because it is a charge. It is a compulsory item. अब जिससे आपने बिल्डिंग ली हुई है वो आपको ये थोड़ा कहेगा, आप पार्टनरशिप में ये थोड़ा कह सकते हो कि दिस ईयर वी आर फेसिंग लॉसेस, वी आर सफरिंग फ्रॉम लॉसेस, सो वी कैन नॉट पे द रेंट.
दिस इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू पे द रेंट टू द आउटसाइडर, राइट? तो रेंट जो है, अगर ऑफिस रेंट है, बिल्डिंग रेंट है, तो वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। किसी एम्प्लॉय की, मैनेजर की, या आपके कुछ फिक्स्ड एम्प्लॉइज है, उनकी सैलरी है, तो दैट इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन बेटा? मैम चार्ज। चार्ज। So salaries, managers commission, managers salary, they all are charged. Now appropriations, बच्चे पार्टनर्स को हम लोग जो जो प्रोवाइड करते हैं, मींस पार्टनर्स के अकाउंट में हम जो टर्म्स क्रेडिट करते हैं, दैट इज सैलरी। इफ आई एम गिविंग एनी सैलरी टू द पार्टनर, तो ये क्या है, एप्रोप्रिएशन है। अगर प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, लॉस के केस में सैलरी नहीं मिलेगी। सेकंड केस है बच्चे, जैसे कमीशन हो गई, बी ने क्या किया, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, और बी क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, मींस कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के उसने फर्म की जो सेलिंग प्रोसेस है उसको और बढ़ा दिया। तो इन दैट केस ही इज आस्किंग फॉर कमीशन हियर, ही विल गेट कमीशन ओनली व्हेन द फर्म इज मेकिंग प्रॉफिट। अगर लॉसेस होंगे तो कोई एप्रोप्रिएशन नहीं दिया जाएगा, राइट? क्लियर है बेटा? यस मैम। तो सैलरी होगी पार्टनर की, टू पार्टनर, कमीशन होगी पार्टनर की, या फिर आईओसी। आईओसी इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, you know that in accounts we are following business entity concept. What is business entity concept बच्चे? मैम की जो लॉस या प्रॉफिट है वो बिजनेस की व्यू से देखते हैं। नहीं बेटा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन, they both are separate entities. In the same way, in partnership, partners and partnership firm, they both are separate entities, right? I'll explain it to you. ये नोट कर लिया बच्चे? यस मैम। ओके, देखो बच्चे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता था, अगर आपने +1 में स्टडी किया है, so according to this concept, business and businessman both are separate entities. In the same way, in partnership, partners and partnership firm, they both are separate entities. दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, मतलब हम लोग इनको सिंगल कंसिडर नहीं कर सकते, दे आर नॉट कंसिडर टू बी सिंगल एंटिटी। ऐसा होता है, देखो पार्टनर्स ने क्या किया, पार्टनरशिप में कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, कैपिटल दी है ना, इस कैपिटल के ऊपर पार्टनरशिप फर्म, फर्म का क्या रोल है, इस कैपिटल के ऊपर पार्टनर्स को वो क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट। दिस इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इज इट क्लियर विथ इट? यस मैम। तो देखो, पार्टनर्स कैपिटल दे रहे हैं, इन रिटर्न पार्टनरशिप फर्म से क्या ले रहे हैं, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, तो जब वो मिलता है उनके लिए क्या है, वो इनकम है, राइट? लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, वो एक एक्सपेंस है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो उनके लिए क्या हो गया, एक एक्सपेंस हो गया। क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, नेक्स्ट कम्स योर आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये पार्टनर्स से चार्ज किया जाता है या फिर पार्टनर्स को पे किया जाता है? मैम उनसे चार्ज किया जाता है। हाँ, so interest on drawings, if any partner withdraw any amount for personal use, so he is liable to pay interest on that amount. So it is always charged by the partner. पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं, तो पार्टनर का क्या हो गया, एक्सपेंस, ठीक है ना?
अब ये जाता किसके पास है? फर्म के पास, पार्टनरशिप फर्म के पास, तो फर्म की क्या हो गई? इनकम। तो जो एक का एक्सपेंस है दूसरे की इनकम, अगर उसका एक्सपेंस है तो पहले वाले की इनकम। क्लियर बेटा? Yes, ma'am. तो आईओसी, आईओडी, सैलरी, कमीशन, बोनस, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। क्लियर है बच्चे सारा कुछ? Yes, ma'am. ओके बच्चों, हो गया क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मिनट बेटा। हाँ बच्चों बोलो, आंसर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का? Ma'am, Q's capital account debit 450 to P's capital account 300 to R's capital account 150. पी डेबिट, क्यू एंड आर क्रेडिट। Q debit, P and R. अच्छा, क्यू डेबिट, पी एंड आर डेबिट। ठीक है बच्चे, बाकी सबका भी यही आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? डाउट है बच्चों किसी को भी इस क्वेश्चन के अंदर? So I'll assume there is no doubt. फ्रीज हो गया बेटा क्वेश्चन? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। 61। Yes. Yes, ma'am. Yes. हरी आप बच्चे सॉल्व इट। Ma'am, Ravi's capital Ma'am, account कर दिया। debit 7,000 and Mohan's अच्छा capital ये भी हो account. गया? Yes, ma'am. वेरी गुड। रिया आंसर बोलना क्या आ रहा है? Ma'am, Ravi's capital account debit 7,000 to Mohan's capital account 7,000. 7,000. Let me check it in the notepad. नहीं बच्चे, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक। हाँ साथी किया क्या? Yes, sir. Ma'am, Mohan's capital account debit 38,000 to Ravi's capital account 38,000. गुड। साथी साथी का आंसर करेक्ट है रिया। मोहन कैपिटल अकाउंट 38 टू रवि 38। नंदिनी हैव यू डन इट बेटा? Yes, ma'am. यही आ रहा है. यही आ रहा है। रिया बच्चे चेक करो क्या मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन तो सिंपल है बिल्कुल। आईओसी देना है, सैलरी देनी है, मोहन की सैलरी है, बस प्रॉफिट और तो कुछ भी नहीं है रिया इसमें। पहले हमने इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसके बाद आफ्टर गिविंग ऑल दीज एप्रोप्रिएशंस, ये एप्रोप्रिएशंस देने के बाद हम लोग प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। रिया डू चेक इट अगेन। Yes, बाकी ma'am. सबके हो गए बच्चों? तीनों क्वेश्चंस हो गए सबके? देवांश, अक्षिता, अमूल्य, बलप्रीत, दर्शप्रीत, दोज हु आर नॉट रिप्लाइंग एट ऑल। ma'am. अमूल्य Yes, हो ma'am. गया बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, आज तो बड़ी जल्दी रिप्लाई कर रहे हो। फिर नेक्स्ट पीडीएफ शो करूं? Yes, ma'am. ओके जिनका रह गया टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द पेज इफ समवन दे आर स्टिल डूइंग। प्रियंका मैम, बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी हाँ, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और wrongly distributed profit. okay, now we have done IOC. Now in next PDF you will get questions based on IOD, profit ratio, wrong distribution, and sometimes IOC is credited more whatever it was mentioned in the deed, and sometimes IOC is provided less than whatever is provided in the deed. ठीक है, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आएंगे मैं डिस्कस करते चलूंगी। ओके, रीड क्वेश्चन नंबर 62। विनोद करण पार्टनर्स हैं, फिक्स कैपिटल दी हुई है। फिक्स कैपिटल मतलब सांची? Ma'am, opening और closing capital same हो गया।
हाँ ठीक है, तो अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया हुआ है जहाँ पे डायरेक्टली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. फॉलोइंग आर इग्नोर इन केस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. आईओसी इग्नोर है, पार्टनर, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे ऐसे, जल्दी से करो. सिर्फ आईओसी प्रोवाइड करना है. नेक्स्ट 63rd मैं करवाऊंगी, 62nd करो जल्दी से. ओके यति, लुक हियर अगेन बच्चे. नाउ वी हैव फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. Yati, on credit side, we write by profit and loss account. This is always the profit from profit and loss account. बच्चे हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते थे इन +1. यहाँ पे हम लिखते थे टू नेट प्रॉफिट, यहाँ लिखते थे ना टू नेट प्रॉफिट. अब यही वाला प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड में एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आ जाता है. राइट नाउ रिमेंबर वन थिंग बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर यहाँ पे नेट लॉस होगा तो उसे एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं करते. ये मत करना कि लॉस अगर मैम क्रेडिट साइड है तो हम लोग इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे. इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट लॉस इज नेवर ट्रांसफर. कभी भी ट्रांसफर नहीं करना. उसकी एडजस्टमेंट आगे बताऊंगी कि नेट लॉस की ट्रीटमेंट कैसे होती है. ठीक है बच्चे. नाउ by profit and loss account there is always profit here. इस साइड पे डेबिट साइड पे we write all the appropriations we are going to provide to all the partners. जितनी appropriations थी IOC, salary, bonus, commission, वो सब किसको देना है हमने, पार्टनर्स को. तो वो appropriations डेबिट साइड आएंगी. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Like we have two partners in partnership deed A and B. तो बच्चे यहाँ पे दोनों का अमाउंट लिखा, आईओसी जितना आपने प्रोवाइड किया मेन कॉलम में अमाउंट आएगा. उसके बाद टू सैलरी, ए और बी अगर दोनों की सैलरी है या किसी एक की है तो यू विल राइट, अगर एक की है ए की तो टू ए सैलरी, बी की है तो टू बी सैलरी. अगर दोनों को सैलरी प्रोवाइड करनी है देन बाइफिकेट द टर्म्स, डिवीजन इस तरह से कर देना. इन द सेम वे सैलरीज जिस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बोनस और कमीशन भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो इसके लिए मैं अलग से कॉलम नहीं बना रही हूँ. बोनस एंड कमीशन. राइट बच्चे, आईओसी हो गया, सैलरी, बोनस, कमीशन. नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो क्या एक चार्ज है तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए का बी का दोनों का इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा. राइट. Yes, अब ma'am. बच्चे समटाइम क्वेश्चन में आपको ये दिया होता है कि ट्रांसफर 5%, 10%, 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू रिजर्व, जनरल रिजर्व. मतलब वो कहते हैं क्वेश्चन के अंदर कि टोटल प्रॉफिट था 1 लाख, 1 लाख का 10% रिजर्व में ट्रांसफर कर दो तो कितना हो गया 10,000. तो उससे भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही शो करते हैं बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसमें, पार्टनर्स में. तो टू ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट. क्लियर है बेटा.
मान लो तुम्हें प्रॉफिट दी है 1 लाख एंड इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन दैट ट्रांसफर 10% ऑफ द प्रॉफिट नेट प्रॉफिट टू रिजर्व। तो यहाँ पे हम क्लियर है? Yes. फॉर्मा क्लियर है देखिए यहाँ तक? ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या करना है, अकाउंट्स को बैलेंस करना है। जब हम लोग अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे तो ये प्रॉफिट है, तो ऑब्वियसली मैंने बोला तुम्हें यहाँ पे कि लॉस को हम लोग ट्रांसफर नहीं करते। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट ही ट्रांसफर किया जा रहा है तो क्रेडिट साइड विल ऑलवेज बी हायर देन योर डेबिट साइड, so there will be profit। देखो बच्चे, ये था नेट प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट आएगा दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। दोनों प्रॉफिट में डिफरेंस है। डिविजिबल प्रॉफिट ये नेट प्रॉफिट था जिसमें हमने ना किसी पार्टनर को सैलरी दी थी, ना कमीशन दी थी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था। तो ये सारी एप्रोप्रिएशंस माइनस करने के बाद अब जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो हम लोग पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट इज व्हाई दिस प्रॉफिट इज डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, समझ आ गया ना? कुछ अभी तक टिल नाउ समथिंग विच इज नॉट क्लियर? Because this is the basic of partnership बच्चे। In part A we are going to do entire partnership, so this is the basic of partnership। If this is clear then you will be able to। net profit और distributable profit क्या difference समझ नहीं आता है इनमें। अच्छा, वो समझ नहीं आया ना, वो मैं दोबारा बताती हूँ। देखो यति एंड मैम, राइट, हम दोनों पार्टनरशिप में है। अब इस पार्टनरशिप में हम लोगों का जो प्रॉफिट आ गया ना बच्चे, दैट इज 50,000। क्लियर? हम दोनों की जो फर्म में हमने सेल्स वगैरह की है, अपना एंड में कैलकुलेशन किया, हमें जो नेट प्रॉफिट मिला वो 50,000 है। लेकिन हम इस प्रॉफिट को अपना डिविजिबल प्रॉफिट नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते बेटा? अगर हमने डीड में बोला हुआ है कि यति एंड रुचि दोनों को क्या मिलना है, सैलरी मिलनी है, तो तुम क्या करोगे, इस प्रॉफिट में से सैलरी दोगे ना। कोई घर से लाके तुमने सैलरी देनी नहीं है ना। हमने क्या करना है, इसी प्रॉफिट में से सैलरी निकालेंगे ना अपनी। Yes. ठीक है, तो हम लोगों की जो सैलरी का अमाउंट था वो 10,000 था, हमने सैलरी दे दी। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा बच्चे, 40,000। मान लो इस 40,000 में यति की कमीशन भी थी, यति को डीड के अकॉर्डिंग कमीशन भी अलाउड है 5,000 की। अब कितना रह गया, 35,000। 35,000 रह गया ना? Yes, ma'am. अब ये 35,000 और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, मान के चलते हैं सिर्फ यही एप्रोप्रिएशन थी। इस 35,000 को हम कह सकते हैं कि रुचि एंड यति के बीच में नाउ इट कैन बी डिवाइडेड। तो दिस 35,000 इज डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर बच्चे? जो हम पार्टनर्स में एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये यहाँ पे आएगा। अभी प्रॉफिट शो करती हूँ मैं। हाँ बच्चे बोलो। मैम हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? अब देखो यहाँ पे मान लो हमारा टोटल आया, लेट अस अज्यूम 1 लाख। 1 लाख ही ले रही हूँ मैं अभी। और ये सारे एप्रोप्रिएशन देने के बाद जो डेबिट साइड का टोटल था यति, दैट इज 60,000। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल था 60,000। 1 लाख रुपया फर्म का टोटल प्रॉफिट था। 60,000 एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स की निकालनी थी। उसको निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो था 40,000। दिस 40,000 इज डिविजिबल प्रॉफिट विच इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स एक्चुअली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, इनकी रेशियो में हमने 40,000 को क्या किया, डिवाइड कर दिया। बच्चे सारा कुछ देने के बाद जो बचेगा ना वो पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। समझ आया? जो रेजिडुअल इनकम होती है ना वो बांटेंगे वो आपस में। इसे हम पैरेलल कर देते हैं। यस यति बोलो, आपका फॉर्मा क्लियर है? फॉर्मेट समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छे से क्लियर है बच्चे, बिकॉज इस पे बेस्ड अप क्वेश्चंस करने हैं।
अपनी जितनी भी पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस थे उन्हें एक बारी अच्छे से गो थ्रू होना, उनको परफॉर्मा याद रखना। एप्रोप्रिएशन सारी डेबिट साइड आएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों मेंटेन करते हैं बेटा? Can you please repeat? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन क्यों करते हैं? व्हाई देयर इज नीड ऑफ मेंटेनिंग दिस अकाउंट? Ma'am, to settle the claims of partners. To settle the claims of the partners and to divide the divisible profit among all the partners, right बच्चे? Now this profit, ये जो divisible profit है, इसे हम further transfer करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। वो आगे बनाएंगे, पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। So this is very important, this is the base। अभी इसके आगे भी कुछ केसेस हैं, sometimes when loss is given। आज मैंने आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी है कि जो जहां से हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे सारे। कर लिया बच्चे वो मैथ नोट? Yes, ma'am. ओके बच्चों, हो गया 62 क्वेश्चन? Yes, ma'am. बोलो सांची। एंट्री Ma'am, Karan's current account debit 10,000 to Vinod's current account 10,000. करंट अकाउंट टू विनोद करंट अकाउंट। ठीक है, करेक्ट है बेटा। बाकी सबका हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, गीतल हो गए बेटा क्वेश्चन? Yes, ma'am. Okay. Now बच्चों, read question number 63. जैसे प्लीज भेज दिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 63 रीड करो। अब इसमें क्या प्रोवाइड करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट होता है पार्टनर के अकाउंट में कि क्रेडिट होता है? Debit. डेबिट। तो मतलब अभी हमने जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस की है ना, उसमें तुम नोट करना, आईओसी जो है वो क्रेडिट होता है, प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट होता है, सैलरी जो है वो क्रेडिट होता है, लेकिन आईओडी जो है वो क्या होता है? डेबिट होता है। तो जो भी तुमने स्टेटमेंट किया है वो सब कुछ सेम फॉलो करना है, लेकिन जब हम लोग एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री हम लोग क्या पास करते थे? गेनर को डेबिट एंड the person, the partner who is getting less amount, or in other words we can say the loser, उसे हम क्या करते थे? क्रेडिट। यही एडजस्टिंग एंट्री पास करते थे ना हम लोग। आईओटी के केस में उल्टी एंट्री पास हो जाएगी। उल्टी एंट्री कैसे हो जाएगी? जिससे कम अमाउंट मिल रहा है उससे आप क्या करोगे? डेबिट। जिससे ज्यादा अमाउंट मिल रहा है उससे आप क्या करोगे? क्रेडिट। क्लियर है? बोलो, समझ Yes, आया ma'am. कॉन्सेप्ट? Because IOD, it is a charge. It is a charge for the partners. So, इस केस के अंदर whatever we have done for the appropriations which are credited to the partners capital account. Now the reverse of it will be followed for debited to the partners account. ठीक है? जिन्हें समझ आ गया start doing your question. जिन्हें नहीं समझ आया look at the board. I am solving it here. पहले एक बारी प्लीज मुझे बता दो, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? समझ आ गया ऐसा Yes, क्यों किया हमने? Yes, ma'am. ठीक है? Yes. हाँ, तो आईओसी, प्रॉफिट, सैलरी ये सब क्रेडिट होते हैं, लेकिन आईओडी इज द अलोन टर्म जो कि डेबिट होता है। तो डेबिट के केस में हमने जो एग्जिस्टिंग एंट्री है उसको रिवर्स कर दिया बस, और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। सेम वैसे ही आपने एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ABC are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Partnership deed provides for charging interest on drawings 10% per annum.
ड्रॉइंग्स गिवन है दिसंबर 2004 की 60,000, 45,000, 30,000. कितना इंटरेस्ट है? 10%. After the final control, it was discovered that IOD has not been taken into consideration. Give necessary adjustment entry. हम लोग टेबल बनाएंगे. रिमेंबर वन थिंग, इन दिस क्वेश्चन प्रॉफिट इज नॉट गिवन. जैसे हमने आईओसी का स्टार्टिंग पार्ट किया था ना, यहाँ पे भी प्रॉफिट गिवन नहीं है. इट मींस जो ड्राइंग का टोटल अमाउंट आएगा उसको प्रॉफिट में डिवाइड करोगे, जो बिल्कुल बिगिनिंग में किया था आईओसी. कितने पार्टनर्स है? 3 है ना. कितना कितना अमाउंट है आईओडी का? 60, 45, 30. अच्छा बच्चों, इसमें आईओडी कितना लगेगा? आईओडी कितना लगेगा? 10%. 10%, because rate is given 10%, right? Yes. तो अकॉर्डिंगली इसका हो गया 6,000, इसका 4,500, इसका 3,000, राइट साथी? Yes, ma'am. मैम दिसंबर में तो फिर मंथ्स का भी ले लीजिए. हाँ, क्वेश्चन के अंदर पर एनम गिवन है. 10% पर एनम गिवन है ना, पर एनम. Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. साथी इस केस में इफ पर एनम इज गिवन, देन दे हैव नॉट मेंशन्ड द विड्रॉल डेट. टाइम नहीं बताया हुआ, तो कितने मंथ्स कंसीडर करोगे इसे? 6 6 months. months. 6 months. ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग बच्चों, जब भी आईओडी कैलकुलेट करोगे, अगर पर एनम गिवन है, अगर यहाँ पे पर एनम नहीं होता ना तो फ्लैट 10% ले लेते, बट पर एनम इज गिवन, बट द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट मेंशन्ड हियर. सो इन दैट केस विल चार्ज इट फॉर 6 months only. फॉर आईओडी विल बी 3,000, 2,250 एंड 1,500. ठीक है. अब बच्चे क्या करना है? इन तीनों का टोटल आपने डिवाइड करना है एज अ प्रॉफिट इन द रेशियो 6,750 आ गया. रेशियो कितनी है? 5:3:2 है. 5:3:2. हाँ, तो इसे डिवाइड करो. ये आ गया 675, 675 इंटू 5, 675 इंटू 3, 675 इंटू 2. जल्दी से मल्टीप्लाई करो. ट्वेल्व 50, 15, 21, 22, 18, ये आ गया 3375, 2025, 1250. आ गया बच्चों? देखो यही आ रहा है. Yes, ma'am. आप क्या करेंगे? Ma'am, 1350 नहीं आ रहा? Yes, ma'am. Fast में. 1350 किसमें? लास्ट में? का. C का. हाँ, 13 बनेगा. ठीक है, 1350. अब आईओडी में उल्टा करना है. कितना आया ये? 375. वैसे नेट इफेक्ट निकालोगे A माइनस B करके. $225, 150. ये आगे बच्चों अमाउंट देखो. लुक हियर, मैंने बताया था जिसका ज्यादा अमाउंट आता है उसे हम लोग क्या करते हैं? डेबिट ना. लेकिन इस केस में रिवर्स होगा. ए का ज्यादा अमाउंट आया है, 3,000 से 3,375 आया, तो इसे अब हम क्या करेंगे?
क्रेडिट, इसमें 2250 ज्यादा है, 2025 कम है, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। सेम इसमें भी, तो ये भी क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री क्या आएगी? B is account debit, C is account debit to A is account. Clear? Yes. Yes, ma'am. बस इस पॉइंट को याद रखना प्लीज। IOD is a charge, that's why we have reversed the entry. Otherwise जितने भी आपके appropriations हैं जो क्रेडिट होते हैं अकाउंट में, उनके लिए आपको वही एंट्री प्रोसीजर फॉलो करना है, डेबिट द गेनर एंड क्रेडिट द लूजर। क्लियर है बच्चों सबको? Yes, ma'am. फर्स्ट आज बच्चे तेरा रिप्लाई नहीं आया है अभी। फर्स्ट दिव्या, दर्शप्री, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। फर्स्ट आज नेटवर्क इशू है क्या? वेदर तो क्लियर है बिल्कुल। ओके, स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 64। Bachcho, tell me one thing. I'm planning to have your classes daily for 1 hour. Question number 64. Sachin, Kapil and Rashmi sharing profits in this. Rashmi wants that she should share the profit equally with Sachin, and Kapil, she further wants that change in profit sharing ratio should be applicable retrospectively for the last 3 years. What does it mean? Retrospectively for the last 3 years. Other partners have no objection to this. The profit for the last 3 years is this. Total profit निकाल लेना, find the adjusting entry. But in this question, retrospectively जहाँ पे भी ये word given होगा, it means जितने भी changes हुए हैं ना, यहाँ पे लिखे है ना last 3 years, तो वो कहते हैं last 3 years से ही हमने change किया है सारा distribution. जितना time period given होता है, अगर यहाँ पे ये mention नहीं होता last 3 years, तो तुम last year consider करते, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली वर्ड जहां पे भी दिया होता है, जितने इयर्स के लिए दिया होता है, अगर यहाँ पे 4 साल का प्रॉफिट गिवन होता एंड दे आर सेइंग कि वी विल चेंज दिस रेशियो फॉर द लास्ट 3 इयर्स, तो तुम सिर्फ लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट से रेशियो को चेंज करोगे, पहले वाले के लिए चेंज नहीं करोगे। समझ आया? मैम एक बार फिर से बता दो। दोबारा बताती हूँ, सुनो। देखो यहाँ पे वर्ड गिवन है रेट्रोस्पेक्टिवली। इस वर्ड का मतलब क्या है? देखो जैसे A, B, C, उनका प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 2008 का, 9 का, 10 का एंड 11 का। यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है 10, 20, 50, 5। पहले जितने भी ये 4 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है, इनके बीच की रेशियो थी 3:2:1, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है दे हैव चेंज्ड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 3 इयर्स। मतलब इस साल में उन्होंने अपनी रेशियो ये ही फॉलो की 3:2:1, लेकिन लास्ट के 3 ईयर में जो रेशियो है वो हो गई इक्वल। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है
चेंजेस वाला वो सिर्फ 3 साल के लिए होगा, 4 साल के लिए नहीं होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी 3 साल का है और चेंजेस भी 3 साल के हैं। तो पहले इस प्रॉफिट को जो रेशो दी हुई थी उसमें बांट दो, और उसके बाद जब रेशो चेंज हुई है टोटल प्रॉफिट को उस रेशो में बांट दो। उसके बाद डेबिट क्रेडिट करके अपनी एडजस्टिंग एंट्री निकाल लो। क्लियर है? Yes, ma'am. No, Yes, मैम। हाँ बेटा दृष्टि बोलो। मैम नहीं समझ आया। दोबारा बताती हूँ दृष्टि। दृष्टि सुनो, तुम्हारी और मेरी पार्टनरशिप है बेटा। हम लोग पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। हमने अपनी रेशियो रखी थी 3:2, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि तुझसे हम ना इक्वल पार्टनर्स बन जाते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, जो पिछले साल वाले प्रॉफिट थे ना 3 साल वाले, उससे भी हम लोग इक्वली ही डिवाइड करेंगे। पहले किस रेशियो में कर रहे थे हम लोग दृष्टि? 3:2 में। लेकिन अब डिसीजन क्या लिया कि पिछले साल वाला जो 3 साल वाला प्रॉफिट था ना, उससे भी डिवाइड करो किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में। समझ आ गया दृष्टि? क्या अपना हमारा जो केस है वो क्या है? क्लियर है? यस मैम। तो मतलब जो चेंजेस आएंगे ना बेटा, वो पिछले 3 सालों के लिए आएंगे। फ्यूचर में अब हमारी रेशियो क्या हो गई? 1:1। लेकिन मैंने ये बोला कि तुझसे जो पिछले साल वाले प्रॉफिट थे ना, उसको भी हम पहले इक्वली शेयर करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंगली तुम्हें ज्यादा मिला हुआ है और मुझे कम मिला हुआ है। तो मैंने डिसाइड किया कि तुझसे ये 3 प्रॉफिट भी पहले इक्वल रेशियो में डिवाइड करो। समझ आ गया? यस। बस अब वो चेंजेस किए हैं बच्चे। जब हमने वो चेंजेस किए हैं, किसी के पास ज्यादा जाएगा, किसी के पास कम आएगा। ठीक है? क्वेश्चन बोर्ड पे करके दिखाऊं एक बारी बच्चे? हाँ दृष्टि बोलो, सॉल्व करो बेटा। मैम एक बार कर दो। कर लेती हूँ। यति, Yes, यति, ma'am. बच्चे सॉरी टू वेट। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में विल बी डूइंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द टॉपिक, because I don't think so I'll get time, because I have to take another class at 4:30. So we'll be doing numericals on this topic in the next class. Dear, is it okay with you? Yes, ma'am. Perfectly fine. Okay. Or in any case, I'll talk to institute. I'll provide you with extra classes on Sunday, right? To cover up with your course, Econ accounts both. Yes, ma'am. Okay, okay. You can leave, beta. Sorry. Okay. Thank you, ma'am. Okay, बच्चे को बाय। सृष्टि, मुझे क्वेश्चन बताते रहना, प्रॉफिट कितना है, ठीक है बच्चे? ओके। कितना है प्रॉफिट सृष्टि 3 इयर्स का? बोलो सृष्टि, प्रॉफिट कितना है बेटा? मैम 60,000, 47,000, 55,000। सृष्टि टोटल प्रॉफिट निकालो, कितना आ गया? 1,62,000। पहले रेशो क्या थी? कितने पार्टनर्स है बेटा? यस मैम। मैम 3। Ma'am, 3 3 part. पार्टनर्स। नेम देम। सचिन, कपिल, रश्मि। सचिन, कपिल, रश्मि। ओके। प्रॉफिट बेटा ए पार्ट में हम क्या लिखते हैं? अमाउंट दे शुड गेट। यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट ही है और तो कुछ नहीं है ना? आईओसी तो नहीं है, सैलरी तो नहीं है? No, ma'am. नहीं है। सृष्टि, हाँ बच्चे बोलो। नहीं है ना? नथिंग इज मेंशन्ड हियर। बस ये पार्टनर्स है 3:2:1 में। उसके बाद उन्होंने इक्वली शेयर किया लास्ट 3 इयर्स से, एंड देन देयर इज नो ऑब्जेक्शन, दैट्स इट। अब कुछ नहीं करना बच्चे, अमाउंट दे शुड गेट, यानी ये जो टोटल प्रॉफिट है ये किस रेशो में डिवाइड करना है? इक्वल रेशो में। फ्यूचर के लिए 1,62,000
किस रेशियो में डिवाइड करना है? इक्वल रेशियो में, राइट। बी में क्या करना है हमने? अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, यही 1,62,000 किस रेशियो में था? 5:3:2 कि 3:2:1? 3:2:1. 3:2:1। तुष्टि समझ आ गया? अमाउंट No, ma'am. Yes. हमने डिसाइड किया तुष्टि कि हम दोनों के बीच की रेशियो अब इक्वल रहेगी, तो हमने टोटल प्रॉफिट इक्वली डिवाइड कर दिया, राइट। और उससे पहले वाला किस रेशियो में डिवीजन था? 3:2:1 में। इसे 3:2:1 में डिवाइड करो, कर लोगे? Yes, ma'am. करो। 54,000 ईच आ गया ये वाला। छः 17,000 आ गया बच्चे। ये कितना है? अच्छा सॉरी, ये 81 है। मैम 27,000। हाँ 27,000, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, 81 आना था। ठीक है 27,000। अब बताओ क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? ये कपिल तो कैंसिल ही हो गया, नो गेन नो लॉस की सिचुएशन आ गई कपिल के लिए। तो इसलिए सचिन के लिए क्या आएगा? प्रॉफिट ही है, तो मतलब सिंपल वाली एंट्री करनी है यहाँ पे। क्या आएगा दृष्टि? सचिन डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? जल्दी बताओ। Debit. Debit the gainer because Sachin is gainer here, तो Sachin will be debited। और रश्मि जो है वो लूजर है, she is getting less amount, तो she will be credited। अब अपनी एंट्री पास कर दो। Sachin's account debit, फिक्स करनी है ना, Sachin's account debit to Rashmi's capital account। क्लियर है बच्चे? किसी ने 65 क्वेश्चन ट्राई किया? सिक्सटी 65 क्वेश्चन ट्राई किया? रिया, नंदिनी, गीतल, साची? कर रही हूँ। Yes, ma'am. कर रही हूँ मैं भी। कर रही हूँ। ओके बच्चों, आई एम सेंडिंग द एंटायर पीडीएफ टू द ग्रुप। जितने क्वेश्चंस कर सकते हो कंप्लीट कर लेना, जो नहीं होंगे वो हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर एवरीवन।